Mani Shanker Aiyar sir. He is an iconic figure in political circles, a former diplomat who after a distinguished career in foreign service became a senior leader in the Indian National Congress. He was 4 times Member of Parliament, thrice to Lok Sabha from Mayiladuthurai constituency, this is in Tamil Nadu, and was nominated once for the Rajya Sabha. He joined the Indian Foreign Service and served as the Joint Secretary to Government of India in Ministry of, and later he headed Ministry of External Affairs and later at Prime Minister's office. He attended Doon School where he took the role of student editor to the Doon School Weekly. This is where he met late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi and they remained very close associates. Later he did his graduation in economics from Delhi University, followed up by Bachelor of Arts in Economics from Cambridge University. He joined the cabinet of Dr. Manmohan Singh-led UPA government where he was the head of Panchayat Raj. Shri Mani Shanker Aiyar also held the portfolios for Ministries of Petroleum and Natural Gas, Youth Affairs and Sports, and Development of Northeastern Regions. In 2006, he was honored as the year's outstanding parliamentarian by the President of India. During his long tenure of public service, Mr. Aiyar developed a reputation for being an avid orator, a prolific newspaper and journal columnist, and an authority on South Asian politics. He has written several books, few of them dedicated to our late Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. He has always been an advocate of grassroots democracy and pressed for representative form of government, as he always carried a clear understanding about the process of devolution of power. So I cordially invite respected Chief Guest Sir, Sri Mani Shanker Aiyar, to deliver his lecture. Welcome, sir. Respected members of the family of my friend SJaipalReddy Garu, my fellow speakers, Shri Mohan Guruswamy Garu and Professor Purushotham Reddy Garu, I would particularly like to note the presence of several sarpanches from our panchayats who are among us, and distinguished ladies and gentlemen. I feel uncomfortable speaking to you in English. So with everybody's permission, I'll mix some sentences in English with some sentences in Hindi, so that I hope I can get through to the most important segment of this audience, which I think are the sarpanches who have taken the trouble to come from their respective villages here to this meeting. महात्मा गांधी ने चाहा था कि पंचायत राज हमारे जमहूरियत का बुनियाद बने, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे गांव में तो रद्दड़ है, कुछ भी नहीं है, लोग एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, जो ऊंचे वर्ग के हैं, जो ऊंचे जात के हैं, वो अपनी तानाशाही चलाते हैं, और इसलिए हमने कुछ कोशिश किया कि गांव में लोगों को सुपुर्दगी करके उनको सशक्त करें, तो कैसे जिया जा सकता है. In short, Dr. Ambedkar rejected the idea that Mahatma Gandhi had put forward of making Panchayati Raj the basis of our constitution, the basis of our democracy, on the ground that the villages of India are cesspits, that they are socially oppressive, that the higher castes will capture all power and they will use it in order to further oppress the Dalits. And that is why the Constitution of India has only a small one-line provision for panchayats in the directive principles of state policy, which means it's not justiciable, and it is there to be found in the Constitution. जबकि महात्मा गांधी को बताया गया कि मसौदा में पंचायत राज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो उनको हैरियत हुई. उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है.
लेकिन उनका देहांत 1 महीने के अंदर हो गया। और उसके बाद जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप पंचायत राज को ले आइए, उनको बताया गया कि बहुत देर हो गया है, और जबकि इस पर चर्चा होती है तो सही जगह पर कुछ न कुछ पंचायती राज के बारे में लिखा जाएगा। तो यही है बुनियादी कारण कि हमारे संविधान में जो कुछ भी करने का है केंद्र में और जो कुछ भी करने का है राज्य में, उसके लिए पूरा प्रावधान है, लेकिन जो करना चाहिए नीचे जमीन पर माटी के स्तर पर वो नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज is limited to a single sentence in the directive principles of state policy, which is not justiciable. We have a situation that while the Constitution has ensured that the center will have adequate powers and the state will have adequate powers, there was nothing provided for at the lowest level. This was left to the state governments to do. And the most remarkable thing is, the state governments did not do it. If they had panchayats, they would dissolve them. If they didn't have panchayats, they wouldn't create them. Sometimes panchayats would go on for 15 years. At other times, they'd be finished in 15 days. तो इसको दुरुस्त करने के लिए और वाकई तरक्की को निचले स्तर तक ले जाने के लिए, to ensure that development took place at the grassroots and that it was not confined to the center and state levels, Jawaharlal Nehru, after experimenting with the community development program, which he found unsatisfactory because it was bureaucratic rather than democratic, he came up with a suggestion, a model Panchayat Raj Act. पंडित जी ने सोचा कि इसको दुरुस्त करने के लिए, जबकि उनको पता लगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके ज़रिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बनाए गए थे देश भर में और जिनके शिकार आप सब लोग हो, उस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सारा को सशक्त करके जनता के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो इसलिए पंडित जी ने एक कमेटी बनवाया बलवंत राय मेहता के ज़रिए, और उन सिफारिशों के आधार पर उन्होंने एक मॉडल एक्ट तैयार किए। क्यों एक मॉडल एक्ट? क्योंकि पंचायतों को निर्माण करना वो राज्यों की जिम्मेवारी थी। तो उन्होंने कहा कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम इतना ही करेंगे कि हम उनको बताएंगे सब राज्यों को कि कैसा पंचायत राज को गठित किया जाए। और क्योंकि उस ज़माने में, मैं 1957 और 1962 की बात कर रहा हूँ, और तकरीबन सारे राज्य के सरकार कांग्रेस के थे और पंडित जी कांग्रेस सरकार चलाते रहे दिल्ली में, इसलिए हर जगह पंचायती राज का स्थापन हुआ। So Pandit ji decided that he would create a model act. Why a model act? Because the constitution said that panchayats are the responsibility of the state government. So since he was a strict constitutionalist, he could only prepare a model act and present it to the state governments. But in 1957 and 1962, virtually all state governments were with the Congress, and the central government was with the Congress, and the whole system was run by a giant whose word was the law, and therefore Panchayati Raj got created, but as a private enterprise of the Prime Minister. There was no conviction that this should be done. The result was कि जबकि उनका देहांत हुआ 27 मई 1964 को, तो वहीं के वहीं पंचायती राज का भी देहांत हुआ। धीमे धीमे
तकरीबन हर राज्य में जहाँ की पंचायत राज चलता था उसको छोड़ दिया या उसको बिगाड़ दिया। बस बॉम्बे प्रोविंस एक था जहाँ की आज के दिन महाराष्ट्र और गुजरात है, जहाँ की ये चलते रहा लेकिन अपने ही तरीके से। बाकी समस्त भारतवर्ष में कोई 5-10 साल के अंदर आप देखते तो पंचायती राज का न नाम न निशान रहा। सो विद इन अ फ्यू years of Jawaharlal Nehru's passing away, there was almost no Panchayati Raj to be found anywhere in the country except in Gandhiji's province of Gujarat and in Maharashtra, where it had been fairly firmly fixed. So that is the situation that prevailed when Rajiv Gandhi came to power. और जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझको उनके साथ देश का दौरा करना पड़ा. It was my good fortune that when Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India, it was one of my duties to organize and accompany him on his rural tours throughout the country. And what Rajiv saw is what Mohan Guruswamy told you about. जो राजीव ने देखा ग्रामीण इलाकों में, बस वो ही था जो कि मोहन गुरुस्वामी अब दौरे कर कर देख कर आ रहे हैं कि जो सरकारी नौकर हैं वो ही उन्हीं के दबाव में सब चल रहा है और कि चुने हुए प्रतिनिधिगण जो हैं या तो वो हैं ही नहीं या हैं भी तो उनको अपना सर झुकाना पड़ रहा है और उनके घुटने टेकने पड़ते हैं जो सरकारी अफसर हैं उनके सामने. और कि जो अभी इन्होंने बताया कि टीचर जो है या कोई डॉक्टर हो वो ही बनते हैं जिनके पास पक्का घर हो और बाकी सब अपनी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं. सो व्हाट has been described by Mohan Guruswamy was exactly what Rajiv Gandhi found in his extensive tours through rural parts of almost every state of India. In fact, for some strange reason, the one state he did not go to was Sikkim. I don't know why he didn't go there. But if you leave aside Sikkim, whether it was the mountains of Arunachal Pradesh or the delta areas of Andhra Pradesh, or it was the Deccan Plateau, or it was the coastal areas of Tamil Nadu, or it was the deserts of Rajasthan, or it was the hills of Himachal Pradesh. He went to every part of India. He did not confine himself to the capitals. He went out among the people and he spent endless hours just trying to ascertain from the people themselves what it is that they were lacking and what could be the means of handing it over to them. तो जबकि वो अपने दौरे पर निकलते थे और भारत के हर राज्य में वो पहुंचे, सिवाय मुझे पता नहीं क्यों वो सिक्किम नहीं गए. लेकिन सिक्किम को छोड़कर जो अरुणाचल प्रदेश के महान पहाड़ हैं वहाँ हो या आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, आपके डेल्टा एरियाज़, गोदावरी डेल्टा हो, या तमिलनाडु के राज्य के जो ग्रामीण स्थान हों, या रेगिस्तान की बात हो या पहाड़ों की बात हो, कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं छोड़ा गया भारतवर्ष में जहाँ की भारत के प्रधानमंत्री ने खुद नहीं पहुँचा और अपने आँखों से गवाही की. वही चीज़ जिसका जिक्र हमारे मित्र मोहन गुरुस्वामी जी ने अभी आपके सामने पेश किया. लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे और मोहन गुरुस्वामी, बहुत अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए राजीव कुछ कर सकते थे उसके बारे में.
So we were very fortunate that because Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he did not limit his activity to observing. He could also do something about it. And it was in fact here in Hyderabad, and mention has been made of that at the NIRD, that it became absolutely clear to him as to what needed to be done. इत्तफाकन इसी हैदराबाद में NIRD में जहाँ की वो पहुँचे थे और मैं भी उनके साथ था, उनको अचानक समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए. और वो था, the occasion was the second meeting of the district magistrates of India. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तय किया कि बजाय मेरे समझने का कि क्या गलत है और कैसे उसको सही कर सकते हैं, मैं देश के समस्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, जिनका नाम अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में, कहीं डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, कहीं कलेक्टर कहते हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, लेकिन बिना एक को छोड़े इस देश के तकरीबन 600 इन अफसरान से वो मिले. और जबकि वो मिलते थे तो घंटों उनके बीच में बिताते थे. He would spend hours listening to what these 600 district magistrates had to say. And after the first meeting in which was in Bhopal in December 1987, he said to me, Mani, have you noticed how all the bright district magistrates want the opinion of the people to run their administration, and all the idiots don't want it and want to be on their own? राजीव ने मुझसे पहले मीटिंग के बाद, जो कि दिसंबर सन 1977 में हुआ था, 87 में हुआ था भोपाल में, उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि आपने देखा है क्या कि जितने भी बुद्धिशाली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सब कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों से राय मशवरा करके हमने शासन को चलाया तो बेहतर होगा, और जितने भी बुद्धू हैं वो सब कहते हैं कि हम पर छोड़ दीजिए, हम अकेले कर सकते हैं, ये जो अनपढ़ हैं इनसे हमारा क्या लेना देना. लेकिन जहाँ की ये सवाल उठा था उनके मन में भोपाल में, कोई 3-4 महीने बाद फरवरी 88 में जब हम हैदराबाद पहुँचे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमारी यहाँ मीटिंग हुई, तब उनका मन स्पष्ट हो गया था कि हम सरकार को तभी चला सकते हैं माटी के स्तर पर जबकि जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ें, प्रशासन के साथ जुड़ें, और दोनों को एक साथ मिलकर इस बैलगाड़ी को आगे ले जाना है. कि न तो यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधिगण हैं वो अकेले अपने आप और बिना कोई सहारा कुछ सही काम कर सकते हैं, और नहीं कि कोई IAS का अफसर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे और कहे कि मैं जानता हूँ सब कुछ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सेंट स्टीवंस का हूँ, मैं कैम्ब्रिज का हूँ, और इसलिए मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है इन अनपढ़ गदगद लोगों से. तो दोनों की ज़रूरत है, और दोनों को बैलगाड़ी में लगाएं तो तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी. It is only if the bureaucracy at the grassroots can be yoked to the same cart that the people's representatives are attempting to pull, that between the two of them they will be able to achieve what needs to be achieved. And then over the next 3 meetings, 3 और ऐसे मीटिंग्स हुए, एक मणिपुर में, इम्फाल में,
एक जयपुर में और एक कोयम्बतूर में। तो मतलब पूरे देश में वो घूमे, अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम मीटिंग में रात के 3 बजे पहुंचते थे, रात के 3 बजे पहुंचते थे, पूरा दिन यात्रा करने के पश्चात, और उनको बस अपना मुंह धोने का था और कुछ नहीं, पहुंच जाते थे और ऐसा काम बातचीत करते थे लोगों से जैसा कि सुबह का 9 बजे हो। लोग बेचारे सोते सोते जवाब देते थे उनको, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी बहस होती थी, और फिर 8 बजे को जनाब तैयार हैं कहने के लिए कि आज की यात्रा अब शुरू करें। अब मुझे पता नहीं कहाँ से उनको इतना दम मिला, और ये तो मैं ज़रूर नहीं बता सकता हूँ कि मुझको कहाँ से दम मिला उनके पीछे जाने का, लेकिन वो थे हमारे बॉस, तो इसलिए उनके कहने पर हम भी चलते थे। Anyhow, these meetings would go on at all hours of the day, and I particularly remember a meeting in Coimbatore after he had travelled through the whole of northern Tamil Nadu from the early morning till and done a rally in the middle of the night, that after 12 o'clock he arrived at 3 a.m. to meet these district magistrates, and he stayed with them till 6 in the morning, and then at 8 o'clock he was ready to start his day again. लेकिन इसका नतीजा ये था कि उन्होंने एक किस्म का मंथन करवाया कि जो अच्छा पंचायती राज है उसका अनुभव उन्होंने मिलाया गलत पंचायत राज के साथ। उनके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि कांग्रेस के राज्यों को बहुत अच्छा दिखाए और कि विपक्ष के राज्यों को बहुत बुरा दिखाए। खास तौर पर यहाँ आंध्र प्रदेश में जो NTR साहब ने शुरू किया था, उसको जाकर जांच करने के लिए वो खुद निकले और अपनी गाड़ी चलाते हुए उस ज़माने का जो आंध्र प्रदेश था, समस्त आंध्र प्रदेश, वहाँ पूरे घूमे और जगह जगह पर रोककर लोगों से पूछते थे, वहाँ के सरपंचों से पूछते थे, और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान करते थे NTR साहब, उसको भी समझकर बंगाल में जहाँ की कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ बहुत अच्छा पंचायत राज चल रहा था, तो वहाँ से भी समझकर लेकर उस सब का एक मंथन बनाकर, और उसके बाद जो अमृत निकला वो ही अंत में जाकर पंचायत राज के संशोधन बने संविधान में। So what Rajiv used to do is to not consider who was in power in which state. Here in Andhra Pradesh, he travelled around the place with NTR, and NTR had attempted his own form of Panchayati Raj. So he picked something from that. He went all over Bengal, and whatever was available in that communist-run state, he accepted that. He went to Karnataka and was very impressed with what Ramakrishna Hegde, who was deadly anti-Congress, what was he doing? And he had a man, minister called Abdul Nazir, and he picked up everything he could from Abdul Nazir. And he threw all these elements into having the kind of manthan which produced, with the efforts of Mohini, the Amrit in our traditions, and what he produced was the Amrit of Panchayati Raj. And that was to say that Panchayat Raj will remain a state subject. यहाँ एक सुझाव दिया गया था कि हम स्थायी सरकार को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डालें,
ताकि हम पंचायत राज को बढ़ावा दें। लेकिन राजीव ने कहा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा शुरू करवाए। वो तो चाह रहे थे कि हमें स्थायी इकाइयों को सशक्त करना है, और वो एकमात्र हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, और एकमात्र लक्ष्य रहने से ही कुछ करवा पाएंगे। सो ही रूल्ड आउट any question of changing the constitution. And don't forget, that was the years of the Sarkaria Commission, and they had come out in 1987 with their report on center-state relations, and the Bombay judgment was about to come. So he didn't want to take the focus away from the empowerment of the panchayats and shift it into the controversy over the center and the states. At that time, Jaipal Reddy was in the opposition. उस समय जयपाल जी विपक्ष के नेता थे, और उन्होंने बड़ी मुखालिफत की ये जो पंचायत राज को लाने का प्रयास हो रहा था। और उनका बस यही कहना था ख़ास तौर पर कि ये तो एक राज्य का विषय है, आप केंद्र में बैठकर क्या कर रहे हो, PM to DM without CM, ये था उनका आलोचना। अब इसमें कोई खास सच नहीं थी, क्योंकि CM को बुलाते थे, कहते थे कि आप भी आइए, लेकिन अक्सर विपक्ष के CM खास तौर पर पहुंचते ही नहीं थे, और वो बस लगे हुए थे बोफर्स की बात करने में, शाबानों की बात करने में। और क्योंकि उनको ये आंदोलन चलाना था उनके खिलाफ, तो इस रचनात्मक काम में ऑपोजिशन के जो मुख्यमंत्री थे और ऑपोजिशन के जो मेंबर्स थे, राज्यसभा में तो बहुत थे, लोकसभा में कम थे, लेकिन उनकी मुखालिफत रही, ये हकीकत है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि पहले हम स्थापित करेंगे कि संविधान के ज़रिए पंचायत राज होना ही चाहिए, कि पंचायतों के बिना आप रह नहीं सकते हो। तो कि ये एक मर्जी नहीं रही राज्यों का, ये उनका दायित्व बना, और आज तक वो सबसे बड़ी उपलब्धि वही है कि आप जहाँ भी जाओ हमारे देश में, आपको पंचायत राज की इकाइयाँ मिलते ही हैं, सरपंच मिलते ही हैं, और जो उन्होंने आरक्षण का इंतज़ाम किया था वो मुकम्मल तौर पर इस देश में चल रहा है। किस हद तक, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। The great thing about what Rajiv did was to make it constitutionally obligatory to implement the directive principle of state policy, that you must have panchayats. You can't get away from it. I've often used the expression, which I can't translate into Hindi, that he made Panchayati Raj ineluctable, irreversible, and irremovable. You just had to have Panchayati Raj. And till today, that has been the big success of Panchayati Raj. There's nowhere you can go in the country without finding panchayats and the officials concerned. As also, most importantly, the reservation system that he thought up to answer Dr. Ambedkar's point. क्या चमत्कार जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ, राज्य या देश के स्तर पर 22% जो हमारी जनता है वो शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई है। तो बजाय ये कहने का कि हर पंचायत में 22% आरक्षण रहेगा, उन्होंने कहा नहीं,
आप गांव में जाकर देखिए जहाँ की, या उन गांवों में जाकर देखिए जहाँ की पंचायत स्थापित होने वाला है, और वहाँ जो भी शेड्यूल कास्ट का हिस्सा हो तदनुसार आरक्षण होगा। तो यदि गांव के स्तर पर 40% एससी हैं तो 40% आरक्षण होता है, और यदि किसी और गांव में 10% ही एससी हैं तो 10% ही आरक्षण होता है। नतीजा ये कि जबकि आप गांव के स्तर पर, तालुका के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर और फिर ज़िला के स्तर पर आरक्षण को कुल मिलाकर देखोगे तो 22% ही आएगा। लेकिन हर एक गांव में जहाँ की ज़्यादा एससी लोग रहते हैं वहाँ उन्हीं का राज होगा, और जहाँ की कई दूसरे लोगों का होता है, ठीक है, वहाँ दूसरों का होगा। लेकिन इससे भी आगे उन्होंने महिला आरक्षण के लिए इंतज़ाम किया। आज के दिन जब आप लोकसभा को देखें तो हालांकि हमारे देश की आबादी में 50% या आधी आबादी महिलाओं की है। कितनी महिलाएं हैं लोकसभा में? शायद 8% महिलाएं, और देश में 50% महिलाएं हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने शुरू किया 1/3 से, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब 15 राज्यों में 50% हो चुका है आरक्षण। सो महिलाएं जो निचले स्तर के हैं वो सब इन इकाइयों में आ चुके हैं। और आप पूछेंगे कि कितने, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। There are altogether about 250,000 village panchayats in India. Now to these 250,000 panchayats, we have and then the urban local bodies, we have elected a total of some 3.4 million, या 34 lakh representatives. Let me translate that into Hindi. हमारे देश में तकरीबन 2.5 लाख 250,000 गांव हैं, और हमने चुनकर निकाला है कोई 34 लाख प्रतिनिधिगण, जो कि हमारे स्थायी इकाइयों में ग्रामीण स्तर पर और फिर ऊंचे के स्तर पर चुनकर निकाला है। अब पहले क्या था परिस्थिति कि कोई 500 लोग थे जो कि चुनकर जाते थे दिल्ली, और कोई 4,500 थे जो कि चुनकर जाते थे हैदराबाद और अन्य जो राज्य के राजधानियां हैं। बाकी बैठे रहो। राजीव की क्रांति इतनी थी कि जहां की 5,000 लोगों का शासन चलता था देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज के दिन गांव में 34 लाख प्रतिनिधिगण हैं। 34 लाख, और इनमें से 14 लाख महिलाएं हैं। 14 लाख महिलाएं, 14 lakh elected women. India has more elected women than in the rest of the world put together. गजब की बात है कि भारत में चुने हुए महिलाओं की संख्या दुनिया भर के चुने हुए महिलाओं से ज्यादा है। अब तालियां तो बज नहीं रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझको यहां आने की क्या जरूरत थी आपको बताने के लिए। आप खुद क्यों नहीं इसको जानते थे? एक ही कारण कि ये जो 14 लाख महिलाओं का मैं
जिक्र कर रहा हूँ वो सब गरीब हैं, वो सब पिछड़े जात के हैं, वो सब SC ST हैं। तो हमारे ठेठ मैडम जो कि कांजीवरम साड़ियाँ पहनती हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या जगह है, कुछ नहीं है, तो इनको जो हमारी नौकरानियाँ हैं उनको जगह देकर हमें क्या फ़ायदा। It is a tragedy that this great achievement of independent India as a result of Rajiv's move is so little known only because women of a certain upper class do not get adequate representation in parliament or the assemblies. So they dismiss what we have achieved for their servants and their servant sisters. And we have a very dirty system going on in Haryana and Rajasthan to prevent uneducated women from coming to the top, which is by laying down restrictions on the number of children they can have. If they had 2 children when they were elected and get a 3rd child while they are in office, they immediately dismissed. If they haven't paid their electricity bills, they can't stand in the elections. If they have taken a loan from a bank and have not repaid it, they can't stand in the election. If they haven't passed such and such a class, they can't stand for a panchayat election. If they haven't passed such and such a class, they can't stand for a taluka election. If they haven't passed such and such a class, they can't stand for a district election. The result is that 85% of the women who were elected in Haryana before these rules came in, 85% of them did not qualify to stand in the next election. और इसका क्या नतीजा है ज़रा सुन लीजिए और समझ लीजिए और अपने आईफोन्स को ज़रा छोड़ दीजिएगा। सुनो, ये एक अनोखी मौका है। ये महिलाओं को देखते हुए कि ऐसे उभर कर आ रही हैं कि हमारी नौकरानी बन रही है सरपंच, जबकि हम यहाँ बैठे हैं घर में अपने कांजीवरम साड़ी में। तो इसलिए इन 2 राज्यों में, और शुरू हुआ था राजस्थान में जहाँ की एक महिला चीफ मिनिस्टर थे वसुंधरा राजे, कि ये कहो कि 2 बच्चे से कम हो तो आप खड़ी हो सकती हो, लेकिन जीतने के बाद आपका 3रा बच्चा हो गया तो तब फौरन आपका डिसमिसल होगा। ये कहते थे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपने नहीं काटा तो तब आप खड़े नहीं हो सकते हो, कि आपने ऋण लिया हो बैंक से और उसको वापस नहीं दिया हो तो तब आप खड़े नहीं हो सकते हो, और जब तक कि आपने फलाने क्लास को नहीं पास किया आप पंचायतों में नहीं खड़े हो सकते हो, फलाने क्लास नहीं पास किया तो आप तालुका पंचायत में नहीं खड़े हो सकते हो, और फलाने क्लास को नहीं पास किया तो आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत में नहीं आ सकते हो। और इसका नतीजा ये था कि हरियाणा में 85% महिलाएं जो चुनकर आई थी इन नए नियमों के पहले, वो खड़ी भी नहीं हो सकी दूसरे इलेक्शन में। और ये सवाल नहीं पूछा गया कि क्यों आम जनता अनपढ़ गरीब औरत के लिए वोट डाल रही है, जबकि इतने शानदार और बिल्कुल टॉप महिलाएं हैं गांव में जो कि चौधरी की बीवी हों या किसी रेड्डी की बीवी हों। कारण बहुत सिंपल था, वो देखते थे कि जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं हैं वो चली जाती थीं चंडीगढ़ या हैदराबाद या मद्रास, और कभी कभी गांव में आती थी, जहां की गरीब औरत वहीं की वहीं रहती थी क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे कहीं और जाने के लिए। तो आप सीधा उनके घर जा सकते थे, कोई कुत्ता नहीं था बाहर
भौंकने के लिए। आप जाओ, खटखटाओ और कहो महिला से कि मेरे घर में मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा है और कल सुबह तक नहीं आया तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा कल। अब किसकी हिम्मत होगी कि जो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है उसके घर में जाए, खटखटाए और महिला से कहे कि कल शाम तक मेरी नाली से सारा जो गंध है वो निकले नहीं तो तुम्हें वोट नहीं दूंगा। तो यही कारण है कि गरीब गरीब के लिए वोट डाल रहा था और उनको कोई इतराज नहीं था कि वो गरीब महिला के लिए वोट डाले, क्योंकि आखिर गरीब महिला को अपने जीवन कमाने के लिए उनको बाहर जाकर काम करना पड़ता है, जहाँ की हमारे ऊंचे वर्ग के जो महिलाएं हैं वो घर बैठी रहती हैं या दुपट्टा को ऐसे करके निकलती हैं। तो इसलिए वो खड़ी नहीं होती थी, और खड़ी हो गई तो कैसा चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव लड़ना हो तो आपको जाना पड़ेगा, किसी अनजान के दरवाजे पर खटखटाना होगा और वो आदमी आएगा अपने तहमत पहनते हुए कि हाँ तुम कौन हो, और तुम कहो कि मेरा नाम रीटा है और मैं खड़ी हो रही हूँ और आप उषा को वोट मत दीजिए, मुझे दीजिए। ये तो गरीब औरत कर सकती है, अमीर औरत कर सकती है क्या? तो एक क्रांति चल रही है हमारे ग्रामीण इलाकों में कि जो दबे हुए महिलाएं थे, दबे हुए वर्गों को छोड़िए, जो दबे हुए महिलाएं थे और वो भी सबसे दबे हुए थे दबे हुए वर्गों के, वो आज उभर कर आ गई हैं और ये पदों को वो संभाल रही हैं। और ये लोग क्या कहते हैं जो शहर में रहते हैं कि नहीं ये तो सरपंच राज चल रहा है कि पंचपति काम करता है। तो मैं भी गया इसी के साथ, जबकि मैं पंचायत मंत्री था, दौरे करता था। तो राजस्थान के एक गांव में एक महिला बहुत ही शानदार तरीके से जो भी सवाल मैं कर रहा था पंचायती राज के बारे में, उनके गांव के हालत के बारे में, बहुत ही सुंदर जवाब दे रही थी। और अचानक एक सवाल के जवाब में एक आदमी उठा और उन्होंने इसके जानिब से जवाब दिया। तो मैं उसके तरफ देखा और मैंने कहा कि मैंने सवाल तो मैडम से किया है और तुम कौन हो जवाब देने का? उनका शानदार जवाब आ रहा है तो मैं उन्हीं की बात सुनना चाहता हूँ। तो फिर मैं आगे बढ़ा और जबकि एक और सवाल किया, दोबारा ये आदमी खड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि आखिर तुम हो कौन? और सब लोग हंसने लगे। कहा कि ये तो सरपंच के शौर हैं और इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। और फिर उस महिला ने मेरे तरफ घूम कर कहा, और ये गांव की सरपंच है और मैं हूँ केंद्रीय मंत्री। उस ज़माने में बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था, अब तो वो सब खत्म हो गया, लेकिन उस ज़माने में मैं केंद्रीय मंत्री था और ये लड़की एक गांव के सरपंच। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या इतराज़ है। हम दोनों की शादी 50 साल से हो चुकी है, हमारे 4-5 बच्चे हैं, उनका पालना, उनका देखभाल करना हम दोनों ने एक साथ दिया। और जो भी मुझको दिक्कत होती है ज़िंदगी में उसमें वो मेरे सहारे के लिए आते हैं, और जो भी संकट में वो पड़ जाते हैं तो मैं अपने तरफ से उनको ज़रा उनकी हालत ज़रा सुधारने की कोशिश करते हूँ। तो अब ये एक नया काम मुझको दिया गया है। मैं तो पहले कभी सरपंच नहीं रही हूँ और मैंने अपने शौहर से पूछा कुछ मदद के लिए, तो आपको क्या इतराज़ है कि वो मुझे मदद करते हैं? And I was unable to answer. I know that in my life, whenever I am down, it's my wife who pulls me up. And whenever I am floating too much in the air, it's my wife who pulls me down, brings me to reality.
So if I need my wife, well, why shouldn't she need her husband? And why all this talk of Sarpanch Pati? It's all a way of denigrating women. So if you want gender equality, the only way of doing it is this. I know a scheduled caste woman in Himachal Pradesh, in the district of, I forgot his name, Solan. She has been continuously the village president for the last 25 years. She was first elected when the post was reserved for women. Then she was elected when the post was reserved for Dalits. Then she was elected when it was a general post. And now she continues to be elected whatever is happening because she does a good job. And it's not isolated. I have met them all over the place. In Karnataka, your neighboring state, when I was minister, that's why I got the details, the scheduled caste women are entitled to 33% of the reserved seats. But the actual results showed that 54% of the elected scheduled caste candidates were scheduled caste women. And that the number of, the percentage of scheduled tribe women who were elected was 63%. Why? Because these women work. They are co-earners with their husbands. They know how to go into the market. They are the ones who have to demand कि नहीं मुझको 100 रुपए मिलना चाहिए आपने मुझे 90 रुपए दिए. They are the ones who सौदा करते हैं. They are the ones, they're not sitting at home. They are out in the public space. और इसलिए वो उभर कर आई हैं, आगे बढ़ गई हैं. और इतना आगे बढ़ गई हैं कि हमारे देश के 15 राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% बनाया गया है. और मैं उस दिन का इंतज़ार में हूँ जबकि पार्लियामेंट इसको 50% करे हर राज्य में. क्यों नहीं? आखिर आधा मानव जाति तो महिलाओं का है और उनको अपना सही स्थान देना यही तो न्याय बनता है. और इनमें से ज़्यादातर गरीब हों और निचले वर्गों के, तो तब खुशी ही खुशी. इसमें क्या शिकायत करने की ज़रूरत? हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे देश में जो चुनकर हमने महिलाओं को निकाला है उनकी संख्या समस्त विश्व में जो चुने हुए लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे ज़्यादा भारतवर्ष में अकेला है. और इस तत्व को कोई नहीं जानता, कोई नहीं मन की बात में बताता, क्योंकि उनके मन में इस बात है या नहीं मैं नहीं जानता. यही है दिक्कत कि जो हमारी उपलब्धियां हैं हम उनको नहीं बताते, हम बस शिकायतों को बताते हैं. और शिकायतों को बताना बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट गोइंग टू से दैट वी मस्ट हाइड द डिफेक्ट्स. Panchayati Raj has a lot of defects. Its main defect is that while the mandatory provisions, that is what you have to do, जो मजबूरियां हैं हमारे संविधान में कि आपको पंचायतों को गठित करना ही चाहिए, कि चुनाव करवाने ही चाहिए, कि स्टेट फाइनेंस कमेटी होना ही चाहिए, कि स्टेट इलेक्शन कमेटी होना ही चाहिए, ये सब जो मजबूरियां हैं वो तो हमारे राज्यों ने पूरा स्वीकार कर लिया. लेकिन बहुत से प्रावधान हैं जो कि सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं और वो मजबूर नहीं करता है, वो सिफारिश देता है राज्यों को कि आप ये कीजिए वो कीजिए. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर recommendatory. Whatever is mandatory is happening all over the country. Whatever is recommendatory is not happening. जो भी मजबूरियां हैं उसको तो राज्य सरकारों ने चुन लिया है, अपना लिया है. लेकिन जो सिफारिशें हैं
उनको वहीं के वहीं छोड़ दिया है। तो इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? What are the steps that you can take to ensure that the mandatory provisions, that the recommendatory provisions of the Constitution are given the same status as the mandatory powers? Well, the answer is very simple. It is that all state governments have enacted conformity legislation to the constitutional provisions. And those are justiciable. After all, the State Act on Panchayati Raj is common law. You can challenge it. A constitutional provision, you have to show that there's a constitutional infirmity. Otherwise, the Supreme Court won't take note of it. But your high courts are there for you to say that the state government, the state legislature, has accepted all the 29 subjects that are illustratively mentioned in the Constitution, but made them a state obligation in the state legislation. That there is a model for devolution. That first you decide what are your panchayats going to do. You don't have to start with 29. What are the 6 or 7 functions that are going to be performed by the states, by the panchayats? That is the first F, the functions. The next F is the finances. काम करना हो तो साधन की ज़रूरत है. आप ये कह दें कि हाँ आप शिक्षा चलाइए, गांव का शिक्षा, लेकिन गांव की शिक्षा के लिए आपने पैसा नहीं दिया तो कैसे चलाएगा? तो जो होता है, जो फंक्शंस हैं, उसके साथ फाइनेंसेस भी भेजने हैं और अधिकारी गण को भी भेजना है. तीसरा एफ बनता है फंक्शनरीज, जिसका मतलब है अधिकारी गण. तो सबसे पहले यू हैव द फंक्शंस, द फाइनेंसेस एंड द फंक्शनरीज. तीनों इकट्ठे आ गए तो तभी जाकर सरपंच काम कर सकता है. आपने अटक कर उसको दिया कि हाँ ये आपका काम है करो, लेकिन पैसे सब सरकारी नौकर के साथ रहते हैं. कि जो सरकारी नौकर है वो आपकी बात नहीं सुनता है, वो कहता है कि मंत्री बताया. Dysfunctional. So Panchayati Raj has been made dysfunctional by the non-observance of the provisions of the state law. So don't change the position of the panchayats from the state list to the central list or the concurrent list. If you try to do that, you are centralizing in the name of decentralization. But if people like Professor Purushotham Reddy and NGOs are able to go to the Hyderabad High Court and say that this is what is written in the Andhra Pradesh law, and the reality is that it is not happening, and produce all these punches, these sarpanches, as your witnesses, how can a High Court deny you? लिखा हुआ है कानून में. कानून को बनाने वाली है तेलंगाना की सरकार, और उन्होंने उसको लागू नहीं किया तो उन पर शिकायत लग सकता है और दंड लगेगा कोर्ट के तरफ से. और उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया तो तब आप कोर्ट में जा सकते हो, कह सकते हो कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. अब मैंने सोचा था कि शायद केंद्र कर सकता है, लेकिन केंद्र को किसी राज्य को हाई कोर्ट में ले जाना या सुप्रीम कोर्ट में ले जाना हमारे संविधान के अनुसार ये असंभव है. तो आप ही जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या पंचायतों के लोग हैं, सरपंचों का कोई संगठन हो तो उसके तरफ से आप कोर्ट में जा सकते हो और कह सकते हो कि कानून में ये लिखा है, लेकिन हकीकत ज़मीन के स्तर पर ये है. तो इसलिए आप कृपया
सरकार को बताइए, उनको मजबूर कीजिए कि जो कानून उन्होंने खुद बनाया है उसको अमल में लाना उन्हीं का काम है, और जब तक कि वो नहीं लाते हैं तब तक कोर्ट के कंटेम्प्ट में है, तब काम बन सकता है। तो इस क्रांतिकारी काम मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आप चाहते हो तो मैं भी आपके साथ आ सकता हूं, लेकिन कदम तो आपको उठाना होगा। हम दिल्ली में बैठे तेलुगु न जाने क्या कह सकते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। आप ही जानते हो, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ही अपना दस्तावेज दरख्वास्त तैयार कीजिए, वकीलों की कोई कमी नहीं है, वकीलों का जो राय मशवरा है वो ले लीजिए और उसके साथ पिटिशन तैयार करवाइए, और सरकार जो भी रंग का हो, टीआरएस का हो या कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट का हो, उनको सीधा अदालत के सामने पेश कीजिए और कहिए कि ये उन्होंने खुद अपने कानून में, अपना लिखा हुआ कानून में ये बताया है और ये नहीं कर रहे हैं, तो इसको सही करने के लिए क्या किया जाए। यहाँ आप इनकलाब जिंदाबाद कह सकते हो, लेकिन किसी और पर छोड़ना कि और कोई आएगा, कोई पुरुषोत्तम रेड्डी आएगा या कोई मोहन गुरुस्वामी आएगा, चलता नहीं है। आप ही लोगों को खुद कर, इसलिए मैं आपके तरफ देखकर बोल रहा हूँ, ये आपके लिए संदेश है। आप अपना संगठन बनाइए, और आपको पता न हो कि कैसे बनाएं तो बगल में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ बहुत अच्छे संगठन बनाए गए हैं पंचायतों का, केरल में भी बनाए गए हैं, मेरे ख्याल में एक हद तक तमिलनाडु में भी है। मैं नहीं जानता कि यहाँ है या नहीं, और मैं नहीं जानता कि बंटवारा के बाद जबकि आंध्र प्रदेश को अलग किया गया तेलंगाना से, कि कोई संस्थान तब हुआ होगा जो कि, और उसकी क्या हालत है आज। लेकिन क्योंकि ये आपके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको अपना काम करने के लिए छूट मिलना चाहिए, तो ये कदम आप ही उठाइए। और आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत से एनजीओज़ होंगे, बहुत से वकील होंगे जो मुफ्त में भी ये काम करने को तैयार होंगे, और फिर हम देखें कि कौन इस क्रांति को रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Sir, with all those numbers and details, you have put Google to shame. It's your wealth of knowledge and immense experience as a political leader that was speaking here. And you have concluded with a very inspiring note. And I'm sure our sarpanches here will take necessary action. As I was saying, that no conversation about democracy will be conducted without mention of the ideological seeds sown by the father of the nation, and the constitutional provisions drafted by Baba Saheb Ambedkar, and the democratical institutions set up by Pandit Jawaharlal Nehru. Thank you very much, sir, for all the information you have given, especially your experiences with the late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi and the noble works he has done towards empowering the Panchayat Raj is really commendable. And it is really quite a bit of information that we all need to know. Thank you.